So, good morning, students. Today, this is the new lecture on the deflection of beam. Already, we have covered this one double integration method and Macaulay's method, and today I am taking the new method on which we are going to discuss that how we can calculate the slope and deflection by using the third method which I am taking here, that is the moment area method. So let us understand what is the moment area method. Moment area method, first before going to discuss about the moment area method, I want to tell you that this method, actually when we apply this method to calculate the slope as well as the deflection of the beam, you will find that the problems which we usually calculate by using the double integration as well as the Macaulay's method, that is with lengthy, and it takes some time to solve these problems. What this method is very easy one, you can say. The problems which are very lengthy to calculate by using those two methods which I have already done. So this method is very, you can say, easy to solve the problems, and we can solve the problems in the professional examinations for the professional examinations in GATE or UPSC. So there you will see that we have very less time to solve the problems and we can solve it very easily. So Macaulay's method, this is a very important one to understand. First we will try to understand the concept of the Macaulay's, not Macaulay's method, that is the moment area method. So today my lecture is moment area method to find the maximum slope and maximum deflection. So understand what is moment area method. Moment area method you have that based on the diagram of the bending moment. You can say that based on the area of the bending moment diagram. इसका जो बेस है वो क्या है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो एरिया है उसके ऊपर इसका बेस है, बिकॉज वी कंसिडर द एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. And also two theorems which are given by the Moore, theorem number 1 and theorem number 2. This moment area method depends upon the two theorems. So first of all, we must know what are these two theorems, right? तो जो मोर ने जो पहली थ्योरम आपको दी थी वो क्या था? Change of the slope between any two points on the elastic curve, right? Change two points on the elastic curve. This is equal to the area of the bending moment diagram between these two points, right, divided by
by EI, right? So this is the first statement which is given by Moore. उसने मोर में क्या स्टेटमेंट दिया था? What the statement we got from here? So the statement is change of the slope. That is a change of the slope. You can say change of the slope between any 2 points on the elastic curve. तो इलास्टिक कर्व के ऊपर अगर हम कोई 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं एंड वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑन दिस पॉइंट्स, राइट? अगर हमें इन पॉइंट्स के ऊपर हमें क्या करना है? स्लोप को फाइंड आउट करना है. सो दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स divided by EI. What is EI? This is the flexural rigidity. EI, this is the flexural rigidity, where E is the Young modulus of elasticity and I is the moment of inertia. You understand that? So this is the first statement which is given by the Moore. Now I come to the second statement, but first we will discuss about this first statement, how we will calculate the slope. So from the statement, if you will see, so मैं पहले इसका डायग्राम ड्रा कर देता हूं. Suppose I will consider this beam. So this is your beam, right? Simply supported beam में ले लेता हूं. This is a simply supported beam. A and B, the load W is at here. तो जहां से जहां तक जो लेंथ है इसकी वो आपकी L है, राइट? तो इसका जो इलास्टिक कर्व होगा, बिकॉज वी हैव टू टेक द 2 थिंग्स हियर. फर्स्ट वी हैव टू टेक द इलास्टिक कर्व. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी नीड द इलास्टिक कर्व. तो दिस इज द इलास्टिक कर्व. I will say that in case of your simply supported beam, this is your elastic curve. Now suppose this is point A, this is your point A and this is your point B, right? Now you want to calculate. Now you want to calculate. What do you want to calculate? You want to calculate the, you can say, the slope at the point A or at the point B. So you want to calculate the slope at point A or point B. Then how we can calculate this, right? तो अगर मैं इसका एक तो हमें इलास्टिक कर्व ड्रा करना है और दूसरा हमें क्या ड्रा करना है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. वी हैव टू ड्रा द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आल्सो. So we will draw the bending moment diagram. These 2 things are required. So we have to draw the bending moment diagram. So the bending moment diagram is like this. This is the bending moment diagram A and B. This is the bending moment diagram in this case. And you can say this is the maximum bending moment, that is equal to WL by 4, right? तो हमें क्या चाहिए? हमें एक इलास्टिक कर्व चाहिए एंड दिस इज सेकंड वन इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन व्हाट ही सेड, वी आर गेटिंग हियर द चेंज इन स्लोप. What we are getting here? We are getting here the change in slope between the 2 points. Suppose if these are the 2 points A and B, we are getting the change in slope between the 2 points A and B. Or you can say that theta A minus theta B. Then theta A minus theta B, this is equal to the area of the bending moment, area of the bending moment diagram divided by EI, right?
So theta A minus theta B, this is equal to the area of the bending moment diagram divided by the EI. So you can say हमें क्या करना है कि ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड वी हैव टू divide this area by EI. So from here you will get the change in slope, right? You will get the change in slope. But for calculating the change in slope, we must know the value of the one slope, because here you are getting the change in slope, you are not getting the absolute slope here. तो हमें जहां पे जो फर्स्ट थ्योरम थी, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट थ्योरम हमें क्या मिला? व्हाट ही सेड दैट द change of the slope between any 2 points on the elastic curve. Understand, this point A and this point V, we are not taking these points on the beam, but we are taking these points on the elastic curve, right? So what he said, that the change of the slope between any 2 points on the elastic curve, this is equal to the area of the bending moment diagram between these 2 points divided by EI. So this is your change in slope. From here you will get the change in slope, you will not get the absolute value of the slope. So let us consider the example that in case of simply supported beam and in case of cantilever beam. First I will take the example of the cantilever beam. So just see here that in case of cantilever beam, suppose if there is a cantilever beam, then how we will calculate the slope here? अगर J आपका suppose आप so this is your cantilever beam, right? And this cantilever beam, the load W is acting here. So this point is A and this point is B. You understand this? I am taking the case of the first, I am taking the case of the cantilever beam, and then I will go to the case of the simply supported beam also. So to make you understand easily, first I have taken the cantilever beam, इसलिए मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम का जो केस था इसको मैंने सेकंड रखा है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. सो सबसे पहले हमारा क्या पॉइंट है? व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रा द इलास्टिक कर्व. तो इसका इलास्टिक कर्व कैसा होगा? इसका जो इलास्टिक कर्व होगा, दिस इज लाइक दिस. So the elastic curve is like this. This is the elastic curve. Right? This is the elastic curve. This is the elastic curve of the simply supported beam. You understand? Now we have to find the slope at point A. So हमें फाइंड आउट करना है. दिस इज योर इलास्टिक कर्व. ये हमने इलास्टिक कर्व जो थी आपकी, इलास्टिक कर्व वी हैव ड्रॉन. So this is your elastic curve we have drawn here, and we want to find the slope. You understand? तो इसके लिए क्या करेंगे हम? फर्स्ट we will draw the bending moment diagram. तो इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से होगी? अगर मैं बेंडिंग मोमेंट इसकी डायग्राम लूं, राइट? सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज
So its length is L. You take the length L here. W is the load and L is the length. So this is your L. That is the length of the beam. Now draw the bending moment diagram. So bending moment diagram is like this. ये आपका 0 0 आया. Bending moment at point A 0 and bending moment at point B कितना होगा? W into L, right? So this is here like this. You understand this? So this is your bending moment diagram. So this is your bending moment diagram of bending moment diagram of cantilever beam. ये जो आपकी है ये bending moment diagram cantilever beam की. You have drawn the bending moment diagram of the cantilever beam, right? So this point is your A and this point is your B, right? This is the bending moment diagram of this. Understand? हमें क्या करना है? First of all, before calculating the change in slope, first we have to do two things there. First of all, we will draw the elastic curve of the particular beam. जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, whether it is a cantilever beam, whether it is a simply supported beam or unsymmetrical supported beam, overhang beam, whatever the beam is given to you. First you will draw the elastic curve of that beam, and the second one that you have to draw the bending moment diagram of that, right? Why it is important? Because moment area method, that is the basis of this the bending moment area of the bending moment diagram. That is, you can say area of the bending moment diagram, that is the base of the moment area method. So we have to calculate the bending moment. We have to draw the bending moment diagram of that. That is the second step. First you have to draw the elastic curve and the second step is you have to draw the bending moment diagram. तो ये दो step आपके clear हो गए. अब देखिए, suppose this is your cantilever beam and you know that जो हमारा according to this definition था, or you can say the statement which is given by the Moore, according to that definition, that we are not getting the absolute value of the slope, but we are getting the change of the slope between the 2 points, or the difference of the slope between the 2 points we are getting there. So this is the formula, theta A minus theta B. This is equal to area of the bending moment diagram divided by EI. You understand this? तो जहां पे क्या होगा, अब देखिए, इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम यू हैव सीन दैट वन एंड ऑफ द बीम इज फिक्स्ड. अच्छा, और जब आपको किसी भी एक एब्सोल्यूट वैल्यू आपने निकालनी है, यू हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप. तो यू नीड दैट वन स्लोप, यू नो द वैल्यू ऑफ वन स्लोप. आपको एक स्लोप की वैल्यू चाहिए, यू नीड द वैल्यू ऑफ वन स्लोप, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द value of the other slope. So in case of cantilever beam, you know that at this fixed end, the slope theta B, this is equal to 0. This you know. ये हमने shear force bending moment diagram में भी किया. और जो पीछे मैंने आपका दो मेथड आपको करवाए, that is a double integration method as well as the Macaulay's method, where we are using the boundary conditions. Or in the boundary conditions I have given you, I have told you, discuss it, length and breadth, everything, that in case of cantilever beam, your slope is 0 at the fixed end. So you can say that in case of cantilever beam, in case of cantilever beam, the slope at this end means fixed end. The slope
at the fixed end B is 0. The slope at the fixed end B is 0. Therefore, you can say theta B this is equal to 0. तो जहां पे क्या होगा, थीटा बी की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर थीटा ए दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ the bending moment diagram divided by EI. You understand this? आपको ये पता चला कि how we will calculate the slope in case of कैंटिलीवर बीम. अगर हमें कैंटिलीवर बीम के केस में अगर आपको कैंटिलीवर बीम दिया है एंड यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दैट, सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to, in every problem you have to do two things there. That is, one, you have to draw the elastic curve, and the second one, that is the bending moment diagram. Because bending moment diagram, this is very important one. As I told you that moment area method, that depends, or you can say moment area method का जो basic है वो क्या है, area of the bending moment diagram. तो area of the bending moment diagram ड्रा करना, उसके बारे में समझना, ड्रा करना आपको आना चाहिए. ये तो मैंने शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट का जो चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर आपको शेयर लेक्चर वहां पे दिए हैं, और हर टाइप का प्रॉब्लम, हर टाइप का कंसेप्ट आपको समझाया है वहां पे. और अगर आपको क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा पीछे जाइए, देखिए कि किस तरीके से वी विल ड्रा द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इन दैट केस. अगर डिफरेंट आपका कैंटिलीवर का दिया है, सिंपली सपोर्टेड का है, ओवरहैंग बीम का है, सो एवरी प्रॉब्लम आई हैव टेकन अप देयर, आई हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग एल्स. सो यू मस्ट नो द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम. तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा किया. कैंटिलीवर बीम में जो आपने कंडीशन याद रखनी है वो क्या है कि इफ वी आर कैलकुलेटिंग द स्लोप, so according to our Morse theorem, what he has given to us, he has given the change in the slope. उसने जो हमें डेफिनेशन दिया था, जो स्टेटमेंट दिया था, उससे हमें चेंज इन द स्लोप मिलेगा, बट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप वी विल नॉट गेट फ्रॉम द थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम, मोर फर्स्ट थ्योरम व्हिच ही इज गिवन बाय हिम. तो उसमें भी अगर हमारे पास चेंज इन द स्लोप है, मींस वी आर हैविंग द डिफरेंस of the slope of the 2 points. So if here there are the 2 points theta A and B, तो इसमें हमें क्या दिया है, theta A minus theta B. This is equal to this area of the bending moment diagram divided by EI. This is given here. तो for calculating the absolute value of the slope, तो आप क्या करेंगे, जो एक एंड होगा that is a fixed end in case of the cantilever beam, वहां पे जो आपका स्लोप होगा theta B, that is equal to 0. फिक्स एंड पे स्लोप हमेशा जो है 0 होता है. दैट यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड. तो स्लोप क्या होगा, 0 होगा. क्यों 0 होगा, क्योंकि फिक्स एंड के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया था, बीम कैन नॉट रोटेट, बीम की कोई रोटेशन नहीं होगी. तो जब बीम की रोटेशन नहीं होगी तो क्या होगा, फिक्स एंड है, वहां पे आपका स्लोप क्या होगा, फिक्स एंड के ऊपर 0 होगा. तो ये वैल्यू अपने पर किया सब्स्टिट्यूट, तो आपने निकाल लिया एरिया ऑफ द स्लोप ऑफ द कैंटिलीवर बीम. अब हम सिंपली सपोर्टेड बीम का स्लोप निकालते हैं कि हाउ वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम. इसको मिटा दीजिए, ये तो रहने दीजिए, ये फार्मूला सेम रहेगा. तो ये क्लियर हो गया. अब हम दोबारा सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रा करेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम. फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द सिमेट्रिकल सिंपली सपोर्टेड बीम एंड देन अनसिमेट्रिकल सिंपली सपोर्टेड बीम वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो सिंपली सपोर्टेड बीम, आप दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम.
ये रिएक्शंस ए है, दिस इज सिंपली एट दिस पॉइंट एंड दिस इज योर डब्ल्यू लोड। जो लेंथ है आपकी, ड्रा कर लीजिए इसमें, जो लेंथ है आपकी बीम का एल है, एंड नाउ यू ड्रा इलास्टिक कर्व। जी मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी डिफ्लेक्शन दे दिया है, इतना डिफ्लेक्शन नहीं होता, mm में होता है, बट ओनली 2। So this point is A, this point is B, and this point is C, right? तो ये खैर सिमेट्रिकली लोडेड नहीं आपको दिखाई दे रहा, बट द बीम इज सिमेट्रिकली लोडेड। ये बीम आपकी जो है वो क्या है, सिमेट्रिकली लोडेड बीम है, राइट? आप इसको एज्यूम करें कि वी आर डिस्कसिंग द केस ऑफ द सिमेट्रिकल लोडिंग हियर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि वी हैव टू ड्रा राइट, हमें क्या ड्रा करना है, वी हैव टू ड्रा द इलास्टिक कर्व। जी इलास्टिक कर्व तो इधर तक आएगा। यस, वी हैव टू ड्रा द इलास्टिक कर्व हियर। फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू ड्रा द इलास्टिक कर्व, एंड सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा, सेकंड पॉइंट होगा यू हैव टू ड्रा द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, यू नो द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम। तो बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम होगा सिंपली सपोर्टेड का, right, this is the bending moment diagram of the simply supported beam, और ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा WL/4 here, right? ये W/2, ये W/2, और जहां से लेके जहां तक L/2, जहां से लेके जहां तक L/2, right? So this is the description I have given. तो दिस इज योर इलास्टिक कर्व एंड दिस इज योर, ये आपका है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड दिस इज योर इलास्टिक कर्व। अब देखिए if I have to calculate the slope at that point A in case of symmetrical beam, or in case of simply supported beam, symmetrical loading, or in case of point C, अगर हमें इन दो पॉइंट्स के ऊपर, सपोज हमें A के ऊपर स्लोप निकालना है या C के ऊपर हमें स्लोप निकालना है, तो अगर हम इक्वेशन इस तरीके से लिखते हैं, इफ वी विल राइट द इक्वेशन लाइक दिस, ये तो आपका हो गया थीटा A थीटा B, लिख लीजिए यहाँ पे। अगर हम लिखते हैं थीटा A माइनस थीटा C, राइट, थीटा A माइनस थीटा C, दिस इज द एरिया ऑफ द कंप्लीट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसका सारा एरिया हम लेंगे, एरिया ऑफ द कंप्लीट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मींस एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइडेड बाई EI, यही फार्मूला है हमारा, ये ऊपर लिखा मैंने। अब देखिए इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि जहां पे जो अकॉर्डिंग टू द, ये जो आपकी फर्स्ट डेफिनेशन थी, जो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट थी, जो मोर ने आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट द चेंज इन द स्लोप, दैट इज द डिफरेंस इन द स्लोप। सपोज इफ यू वांट टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप,
अगर आपको सिर्फ थीटा ए चाहिए, थीटा सी चाहिए, मींस वन वैल्यू ऑफ द स्लोप यू नीड, तो उसमें क्या होना चाहिए, एक स्लोप की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड दिस? आपको एक की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। पर देखिए जहां पे अगर मैं थीटा ए और थीटा सी लेता हूं, इफ आई विल कंसिडर दिस, और मुझे स्लोप निकालना है थीटा ए, मुझे स्लोप कहां पे निकालना है, थीटा ए के ऊपर निकालना है या मुझे थीटा सी के ऊपर निकालना है? यू अंडरस्टैंड दिस? अगर मैं थीटा ए और थीटा सी, सपोज ये दो पॉइंट लेता हूं, मींस द पॉइंट ए और सी, अगर ए को स्लोप निकालने के लिए आई विल टेक द पॉइंट सी, होल ऑफ द बीम। एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपके पास है, नो प्रॉब्लम। EI की वैल्यू आपको गिवन दिया होगा, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज आल्सो नो प्रॉब्लम इन द प्रॉब्लम। बट द प्रॉब्लम इज हमें थीटा सी या थीटा ए का स्लोप तो मालूम नहीं है। इस केस में थीटा ए के ऊपर और थीटा सी के ऊपर स्लोप आपका जीरो नहीं होगा। अब थीटा ए के ऊपर स्लोप क्या होगा या थीटा सी के ऊपर स्लोप क्या होगा, बट दोनों के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्लोप होगी, जहां पे आपको स्लोप जीरो नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब आपके पास थीटा ए निकालना तो थीटा सी का तो स्लोप आपके पास मालूम नहीं है, थीटा सी का स्लोप आपके पास मालूम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप जे इक्वेशन यूज करेंगे थीटा ए माइनस थीटा सी, सो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्लोप एट पॉइंट ए, बिकॉज फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्लोप एट पॉइंट सी। हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट सी के ऊपर जो वैल्यू स्लोप है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगी। दिस इज वेरी लेंथी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, क्या होगा, देखिए इन केस ऑफ द सिमेट्रिकल सिंपली सपोर्टेड बीम, जब आपकी सिमेट्रिकल लोडिंग होगी, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, ऑलरेडी डिस्कस किया हमने। ये पॉइंट जो इसका ये पॉइंट है बी, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं लेता हूं जहां पे आपकी डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होती है, वहां पे क्या होगा, आपका स्लोप जो है जीरो होगा। सपोज करो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस पॉइंट के ऊपर ये सपोज करो पॉइंट आपका बी डैश है ऑन द इलास्टिक कर्व, तो इस पॉइंट के ऊपर आपका स्लोप क्या होगा, इफ आई विल सी द इलास्टिक कर्व, I will find here that if I will draw the horizontal line or the tangent, you can say on this point, you will find that जहां पे जो पॉइंट बी होगा, जहां पे आपका जो स्लोप होगा दैट इज क्या होगा, जीरो होगा। एट पॉइंट बी द स्लोप इज जीरो। यू अंडरस्टैंड दिस? तो इसमें हम इक्वेशन ये लगाएंगे, हम इसमें थीटा ए निकालने के लिए हमें थीटा ए माइनस थीटा सी नहीं लगाएंगे, बट हम क्या करेंगे, हम थीटा ए माइनस थीटा बी लगाएंगे, राइट। हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, थीटा ए माइनस थीटा बी, एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपॉन EI, और थीटा बी जो होगा आपका स्लोप एट द पॉइंट बी, दिस इज इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ simply supported beam. In case of symmetrical loading, simply supported beam, the slope at this point B, this is equal to 0. So theta B आपका 0 होगा, तो theta B आपका मिल गया यहां से। So if I want to calculate the slope at point A, तो I will use theta A minus theta B, area of the bending moment diagram। अब देखिए इसमें एरिया जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का होगा वो हमें एरिया इसका पूरा नहीं लेना होगा, बट वी हैव टू टेक द हाफ एरिया, क्योंकि ए और बी के बीच वाला एरिया लेना है, द एरिया बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, राइट, यही था ना, बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो कौन से पॉइंट्स थे, ए और बी, दो पॉइंट्स है जिनके बीच में हम स्लोप जो है फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जो एरिया हम लेंगे वो हम लेंगे ये वाला एरिया, दिस वन,
that area we will take half area of the bending moment diagram in case of the simply supported beam. So theta b is equal to 0. So therefore जहां से हम theta a आपका निकल जाएगा. अगर इसी तरीके से अगर आपने स्लोप at point C you have to calculate. If you have to calculate the slope at point C, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, ये पॉइंट लेंगे थीटा b माइनस थीटा c, थीटा b माइनस सॉरी थीटा c माइनस थीटा b, क्या लेंगे थीटा c, हमें स्लोप जहां पे निकालना है थीटा c माइनस थीटा b, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपॉन EI. और क्या होगा इसमें थीटा b जहां पे भी 0 आएगा थीटा c, तो जो सिमेट्रिकल लोडिंग होगी इन केस ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम, सिमेट्रिकल लोडिंग में उसमें जो आपकी स्लोप थीटा a होगी वही स्लोप आपकी थीटा c होगी. यू कैन से थीटा a दिस इज इक्वल टू थीटा c, मींस द स्लोप एट बोथ द एंड्स दैट इज सेम. सो दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ you can say by slope by the मूवमेंट एरिया मेथड. मूवमेंट एरिया मेथड से अगर हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम स्लोप फाइंड आउट करना है, सो दिस इज द वे हाउ वी विल यूज दिस मेथड. यू अंडरस्टैंड दिस? जहां पे अगेन आई विल रिपीट इट, देयर इज नॉट मच प्रॉब्लम. एक बिल्कुल कन्फाइंड सा मेकर को आपको समझाऊंगा. सबसे पहले आपने क्या करना है, इलास्टिक कर्व यू हैव टू ड्रा, देन यू हैव टू ड्रा द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ऑफ दैट. और जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है, उसमें एक जो पॉइंट होगा उसकी स्लोप आपके पास उसकी वैल्यू होनी चाहिए, बिकॉज जहां पे जो स्लोप की वैल्यू मिलेगी जो आपको अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन और यू कैन से द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द मोड्स, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द थीटा a माइनस थीटा b, मींस चेंज इन द स्लोप. यू विल गेट द चेंज इन द स्लोप, यू विल नॉट गेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप. यू अंडरस्टैंड? तो जहां पे सो वी रिक्वायर वन वैल्यू ऑफ द स्लोप सो दैट वी कैन कैलकुलेट द अदर वैल्यू ऑफ स्लोप वेरी इजी. यू अंडरस्टैंड दिस? तो दिस इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्लोप, मैक्सिमम स्लोप in by you can say movement area method in case of any type of the beam. This is the main concept. This is you have to follow this, you have to understand. You understand this? अब आ जाइए कि इसकी जो सेकंड थ्योरम थी, हाउ वी विल कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम. So this is the change in slope. आप देखिए सेकंड वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द सेकंड थ्योरम. So what is the Moore's second theorem? So Moore's second theorem, पहले इसको लिख लेते हैं, राइट? Moore's second जो स्टेटमेंट थी या थ्योरम थी वो क्या थी? The vertical deviation of any point A on the elastic curve, the vertical deviation of the point A on the elastic curve from the tangent of point V on the elastic curve, right, is equal to क्या होगा? is equal to first movement area of
the bending first moment area of the bending moment diagram divided by EI. So this is the Morse second theorem. First we will understand. This is somewhat tricky, but I will try to make you properly explain this thing. The vertical deviation of any point A on the elastic curve. Suppose ये आपका कैंटिलीवर बीम है and this is point A जहाँ पे आपका लोड है W and this is point B. तो इसका सपोज करो जी इलास्टिक कर्व आपका किस तरीके से है, इस तरीके से इसका सॉरी जे इस तरीके से इसका इलास्टिक कर्व है, राइट। ये आपका इलास्टिक कर्व है, राइट। दिस इज योर इलास्टिक कर्व हियर. सो व्हाट ही से, तो जहां पे आपको इलास्टिक कर्व थोड़ा सा ड्रा करना मुश्किल हो जाएगा, जहां पे जो इलास्टिक कर्व आप ड्रा करेंगे दिस इज समवट डिफरेंट, जो टेंजेंट आपका जो ड्रा करेंगे, क्योंकि इसमें जो टेंजेंट होगा, राइट, इस केस में राइट, तो इस केस में जो इसका टेंजेंट होगा, द टेंजेंट इज द टेंजेंट लाइक दिस, टेंजेंट इज ऑन द बीम, तो टेंजेंट जो होगा ये क्या होगा, बीम के ऊपर होगा, जे बीम है और बीम के से कोइंसाइड करेगा इसका टेंजेंट, राइट। उसने कहा था कि जो इसका जेब है द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी, तो हमने ये टेंजेंट कहां से ड्रा किया, दिस इज फ्रॉम द पॉइंट बी, द वर्टिकल डिविएशन ऑफ एनी पॉइंट ए, वर्टिकल डिविएशन किसका, पॉइंट ए का, ऑन द इलास्टिक कर्व, ये जो इलास्टिक कर्व है, फ्रॉम द टेंजेंट ऑफ द पॉइंट बी ऑन द इलास्टिक कर्व। तो जहां से अगर मैं इसका वर्टिकल डिविएशन इसका निकालूं, दिस इज द वर्टिकल डिविएशन, राइट, दिस इज द वर्टिकल डिविएशन, तो वर्टिकल डिविएशन किसके बराबर होगा, मींस कि आपका है बाई ए, तो डिविएशन किसके बराबर होगा, टी ए बी, ये आपका वर्टिकल डिविएशन हो गया इसका। सो जो आपका डिफ्लेक्शन होगा इसमें, what is YA? YA, this is the deflection of this point A, or you can say the maximum deflection of this point A. This is equal to the TAB, means ये आपका टेंजेंट है और टेंजेंट से ये जो आपका डिस्टेंस है जहां से लेके जहां तक, this is your TAB, tangent is AB, B point is here, we are drawing the tangent from this point, right, you understand? So YA, this is equal to TAB and this is your deflection of this, you understand this point? मैं इसको ही समझाने के लिए एक दूसरा फिगर ड्रा करता हूं, ये समझिए आप, ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम, राइट, द लोड इज एक्टिंग हियर, द लोड इज एक्टिंग हियर, W, this is point A
this is point C and this is point B. So these are the point, right? तो अब देखिए इसमें ये आपकी डिफ्लेक्शन है कर्व की, राइट? तो उसने कहा था, what he said that this is point A and we want to calculate the deflection at this point A. तो इसमें क्या है, ये उसने कहा था A का tangent, we will draw the tangent from here, right? So ये जो आपका डिस्टेंस होगा फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये जो आपका डिस्टेंस होगा फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस डिस्टेंस is your TAV and this is equal to YA. This is the deflection of this, right? तो ये मोटे मोटे तरीके से मैंने आपको समझाया है, अदरवाइज वी डोंट टेक द टेंजेंट लाइक दिस। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जो भी इस केस में हम करेंगे, वेदर इट इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम, वेदर इट इज ए कैंटिलीवर बीम, हमारा टेंजेंट जो है दैट ऑलवेज बी हॉरिजॉन्टल ऑन द इलास्टिक कर्व। ये मैंने आपको समझाने के लिए ड्रा किया था, क्योंकि जहां पे मैं टेंजेंट ड्रा नहीं कर पाया इसके ऊपर, तो इसके ऊपर करता तो ये भी इस तरीके से टेंजेंट आता है, इस तरीके से, लेकिन ये प्रॉपरली डायग्राम मेरे से नहीं बनी है हाथों से। तो इसको समझाने के लिए मैंने कहा कि इफ यू विल ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी, और एक पॉइंट इसमें ये भी रखना है, जहां पे जिस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रा करेंगे आपने मूवमेंट क्या लेना है, मूवमेंट जो लेना है इसमें वो लेना है उसके दूसरे पॉइंट के ऊपर। एक पॉइंट से आपका टेंजेंट होगा और दूसरा पॉइंट से आपका मूवमेंट होगा, अगर इफ यू हैव टू ड्रॉ द मूवमेंट ऑफ दिस, ठीक है। तो ये आपका आ गया डिफ्लेक्शन। अब देखिए एज पर द डायग्राम, फर्स्ट मूवमेंट एरिया ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या होगा, तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी अपना बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा करनी है, राइट? सो लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ द बेंडिंग मूवमेंट। तो आप इसमें भी बेंडिंग मूवमेंट ड्रा करेंगे, राइट? तो ये बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, ये बेंडिंग मूवमेंट इसका ये होगा, राइट? दिस इज द बेंडिंग मूवमेंट, दिस इज द बेंडिंग मूवमेंट। तो ये आपका हो गया WL/4 एंड दिस इज द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम A, C and B. दिस इज द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, राइट? तो जहां पर भी हमें for calculating the deflection we need the two things here. First we will draw the elastic curve and the second one then we will draw the bending moment diagram. Now let us understand what is given here. This is the first moment area of the bending moment diagram. जहां पे फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया क्या होगा, अगर मैं कहूं कि फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया क्या होगा, दैट इज आपने पढ़ा होगा A इंटू जहां पे हम x बार लेंगे, राइट? बिकॉज वी आर टेकिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हियर, सो x बार, A x बार, A मीन्स एरिया ऑफ द बेंडिंग moment diagram. A is the area of the bending moment diagram into distance। कहां से लेंगे हम मूवमेंट, मैंने आपको क्या बताया था, जहां पे हम मूवमेंट किस पॉइंट के ऊपर लेंगे, सपोज करिए ये दो पॉइंट है A और B। Now the things are confusing here, whether we will take the moment at point B or we will take the moment at point A, because हमें जो डिस्टेंस लेना है, हमें कहां से लेना है, डिस्टेंस हमें लेना है फ्रॉम द CG, जो इसका CG होगा, जहां से CG से लेके
जो आपका इसका सीजी है, सपोज ये आपका सीजी होगा इस पॉइंट के ऊपर, सीजी से लेके हमें डिस्टेंस लेना है उसके एक्सट्रीम एंड के ऊपर जहां पे आप मूवमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। इफ यू आर कैलकुलेटिंग द मूवमेंट एट पॉइंट बी, देन जो आपका डिस्टेंस हुआ फ्रॉम सीजी टू दिस, आपको इतना लेना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू एक्स बी बार। और अगर आप मूवमेंट ए के ऊपर ले रहे हैं तो डिस्टेंस सीजी से पॉइंट ए के ऊपर लेना पड़ेगा, सो दैट इज कॉल्ड एक्स ए बार। नो द प्रॉब्लम इज, नो द क्वेश्चन इज कि हमें जो मूवमेंट लेना है, बिकॉज क्या है ये area of the bending moment diagram, we have to take the moment of the area, but we have to take the moment of the area. This is your moment of the area, means area of the bending moment diagram into x bar. अब ये x bar जो distance, what is x bar? That is the distance from the CG of the area to the point where we are taking the movement. CG से उस पॉइंट तक अपने डिस्टेंस लेना है जहां पे आप मूवमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज, सर वेयर वी विल कैलकुलेट द मूवमेंट, वेयर वी विल टेक द मूवमेंट, दैट इज द मेन क्वेश्चन, वी मस्ट नो दैट। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये आपने याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर जिस पॉइंट से, ये नोट कर ले, मैं लिख देता हूं, ये नोट कर ले आप। इफ यू विल ड्रा द टेंजेंट, अगर आप पॉइंट बी से टेंजेंट ले रहे हैं, सपोज इफ यू आर ड्राइंग द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी, यू अंडरस्टैंड दैट, देन यू हैव टू कंसिडर द मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए। एक साइड से, जिस पॉइंट से आप टेंजेंट लेंगे उसकी दूसरी साइड के ऊपर आपको मूवमेंट लेना होगा। और अगर आप ए से मूवमेंट, ए के ऊपर टेंजेंट ले रहे हैं, then you have to consider the movement at point V. You understand this? कि इसमें क्या है, अगर आपका टेंजेंट at V ले रहे हैं हम, तो मूवमेंट आपका, मूवमेंट इज फ्रॉम पॉइंट ए। मूवमेंट कहां से लेना है, पॉइंट ए से लेना है। यू अंडरस्टैंड दिस? मूवमेंट कहां से लेना है, फ्रॉम पॉइंट ए से लेना है, नॉट मूवमेंट, सच डिस्टेंस। हाँ, मूवमेंट आप फ्रॉम ए पॉइंट ए से लेंगे तो जो डिस्टेंस होगा आपका सीजी का, जो आपका सीजी का जो डिस्टेंस होगा वो कहां से होगा, सीजी से लेके पॉइंट ए तक आपने डिस्टेंस लेना है। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? और इसी तरीके से अगर आपका टेंजेंट ए के ऊपर होगा तो मूवमेंट आपने कहां पे लेना है, पॉइंट बी के ऊपर लेना है। और जो डिस्टेंस होगा जिसको हम एक्स बी बार कहेंगे यहां पे, वो डिस्टेंस आपका सीजी से पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस होगा वो आपने लेना है। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो ये हो गया आपको एरिया ऑफ द मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द एरिया कैलकुलेट करने का तरीका। हाउ विल कैलकुलेट, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय ई आई। ऑल्सो दिस इज द वे टू फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम और द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम। यू अंडरस्टैंड दिस? कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें कैसे फाइंड आउट करनी है। हमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू ड्रा द इलास्टिक कर्व, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। हमें क्या करना है, पहले इलास्टिक कर्व हमें ड्रा करना है। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया था शो करने के लिए इस तरीके से होगा, बट अदरवाइज क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बीम, इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम, यू हैव सीन दैट आई हैव ड्रॉन द टेंजेंट। टेंजेंट मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने इलास्टिक कर्व के ऊपर ड्रा किया, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट किया, दैट यू कैन से दैट कोइंसाइड विद द बीम, जो कि बीम का हॉरिजॉन्टल था उसके साथ वो कोइंसाइड हुआ। यू अंडरस्टैंड इट? सो द पॉइंट इज यू विल ऑलवेज टेक द टेंजेंट एज ए हॉरिजॉन्टल लाइन। टेंजेंट को आपने क्या लेना, हॉरिजॉन्टल लेना। अब देखिए, इस केस में मैं आपको कहता हूं कि आप एक हॉरिजॉन्टल ले लें, तो जहां पे टेंजेंट किस तरीके से होगा, आप टेंजेंट होगा इस तरीके से, दिस इज
सपोज जे आपका इस तरीके से आप टेंजेंट लेंगे, ठीक है। तो जे आपका टेंजेंट हो गया इस पॉइंट के ऊपर, यू अंडरस्टैंड दिस, जे आपका टेंजेंट हो गया इस पॉइंट के ऊपर। आप देखिए, मैं कहता हूं कि आप क्या करो, जहां से लेके जहां तक मुझे डिफ्लेक्शन चाहिए बाई सी, मुझे बाई सी डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करके दो, इस पॉइंट के ऊपर कितना डिफ्लेक्शन होगा। सो दिस इज टेंजेंट लाइक दिस, राइट। अब देखिए, in case of simply supported beam, symmetrical simply supported beam, right? I have taken the case of the simply supported beam and want to find the deflection at point C, right? Because the maximum deflection in case of the simply supported beam, symmetrical simply supported beam, that is at the point C. Why? Because here the slope is 0. You understand this? जहां पे स्लोप 0 होगा वहां पे क्या होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। एंड वी वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। हमें क्या चाहिए, वी वांट टू फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हियर। अब देखिए, ये जो है दिस इज योर इलास्टिक कर्व, राइट। और जो इलास्टिक कर्व के ऊपर ये जो पॉइंट है, डोंट टेक द पॉइंट ऑन द बीम हियर। हम बीम के ऊपर पॉइंट नहीं लेंगे, जो मैंने आपको बताया द पॉइंट दैट शुड बी ऑन द इलास्टिक कर्व। देखिए पॉइंट जो है C, suppose if I say this is at this elastic curve at this here, at this point here, तो मुझे बताइए जो टेंजेंट से इसका डिस्टेंस है इस पॉइंट का C का, बिकॉज पॉइंट C इज लाइंग ऑन द टेंजेंट, यू कैन से जो पॉइंट C है ये क्या है, जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रा किया है उसी पॉइंट के ऊपर पॉइंट C जो है वो लाई कर रहा है। सो यू कैन से जहां से इफ आई विल कैलकुलेट, तो जहां से मैं डिफ्लेक्शन इसकी फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जो डिस्टेंस होगा आपका जहां से, डिस्टेंस जो है इसका डिस्टेंस द पॉइंट C ऑन द इलास्टिक कर्व फ्रॉम द टेंजेंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C और द वर्टिकल डिविएशन, यू कैन से नॉट डिस्टेंस, वर्टिकल डिविएशन लिख लो, वर्टिकल deviation of point C on the elastic curve, on the elastic curve from the tangent at point C, ठीक है ना, from the tangent at point C, from the tangent at this point C, ये क्या है, 0 है, बिकॉज बोथ दीज पॉइंट्स आर सेम लाइंग ऑन हियर। तो इसका मतलब है कि हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक दिस, आइदर यू हैव टू टेक दिस, दिस इज सिमेट्रिकल लोडिंग, or you have to take this, you understand this? So you can say that by A, ये जो डिफ्लेक्शन होगी आपकी by A, this is equal to TAC, राइट। तो by A जितनी J डिफ्लेक्शन होगी, जितनी J डिफ्लेक्शन होगी, you understand this? तो हमें क्या करना पड़ेगा, we have to find the deflection at this point here,
जहां पे देखिए आप, जहां पे पॉइंट ए जहां पे है इलास्टिक कर्व के ऊपर, और जो इसका टेंजेंट है, इफ आई विल ड्रॉ द प्रोजेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, आप देखिए जे इस डिस्टेंस के ऊपर है, और दिस इज द सिमेट्रिकल बीम, यू कैन से सिमेट्रिकल लोडिंग है, तो इसलिए जितना जे होगा डिफ्लेक्शन, उतना ही डिफ्लेक्शन जे होगा। तो इसलिए हम डिफ्लेक्शन को इस तरीके से निकालेंगे, बाई ए इज इक्वल टू टी ए सी, एंड देन वी विल टेक द हाफ एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और बाकी वहां से हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द फर्स्ट मोमेंट एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना, और ई आई की वैल्यू निकाल लेंगे। सो यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। पहली बात तो ये है, जहां पे दोबारा मैं रिपीट करूंगा कि जो आपकी कैंटिलीवर बीम होगी, वहां पे जो टेंजेंट हम ड्रा करेंगे, द टेंजेंट दैट इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द फिक्स एंड, द फर्स्ट पॉइंट, कि जो टेंजेंट होगा इन द कैंटिलीवर बीम दैट इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द फिक्स एंड, वहां से ड्रा होगा। एंड सेकंड वन थिंग इज देयर कि जो टेंजेंट्स आपके हम ड्रा करेंगे, वेदर इट इज you can say cantilever beam, whether it is simply supported beam, here I am taking these two cases here, so that tangent that should be horizontal, that tangent जो होना चाहिए वो क्या है कि horizontal line होनी चाहिए, that should be horizontal। so in case of cantilever beam की बात करूं तो उसका जो horizontal होगा that is on the beam, that is with the beam you can say, लेकिन जो in case of symmetrical loading होगा वो बीम से किसी डिस्टेंस के ऊपर होगा। सो ये दो तीन पॉइंट्स से जो आपको रखना है, और ये आपके फार्मूले हैं, और इस हिसाब से हम इनके क्वेश्चन बनाएंगे। तो अभी हम एक एप्लीकेशन इसकी करते हैं, कैंटिलीवर बीम की एप्लीकेशन करते हैं, जिसमें हम इसका स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। So I find the maximum slope and deflection of the cantilever beam। हमें कैंटिलीवर बीम का मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट यू ड्रा द कैंटिलीवर बीम, हम कैंटिलीवर बीम ड्रा कर लेते हैं। See your cantilever beam L, right, and load is acting like this। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रा द इलास्टिक कर्व, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। सो इलास्टिक कर्व हम ड्रा कर लेते हैं, ये दिस इज योर इलास्टिक कर्व, राइट। ये आपकी क्या है, ये आपकी है इलास्टिक कर्व। ये आपका आ गया टी ए बी, राइट। तो फर्स्ट वी हैव ड्रॉन द इलास्टिक कर्व, एंड सेकंड पॉइंट इज व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट में इसकी बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम है, वो इसकी हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर लेंगे। सो व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये इस पॉइंट ए के ऊपर 0 होगा, जब ओ रख लीजिए पॉइंट, राइट। और जहां पे लोड आपका W इंटू एल, राइट, जहां पे क्या होगा W इंटू एल लोड होगा इसका आपका नीचे। तो ये इस तरीके से आपकी
ये थोड़ा सा ठीक है। तो जे आपका WL, ये आपके आगे ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसको आप ए बी रख लीजिए, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका निकालना है स्लोप। तो फर्स्ट क्या निकालना है अपने, स्लोप, दैट इज द मैक्सिमम स्लोप। तो मैक्सिमम स्लोप जो होगा एज पर द जो थ्योरम थी इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो क्या था, चेंज इन स्लोप बिटवीन द टू पॉइंट्स दैट इज थीटा ए माइनस थीटा बी, this is equal to area of the bending moment, ये कर लीजिए, ये जहां से लेके जहां तक कितना है ये L, right, area of the bending moment diagram between A and B divided by EI. Understand? This is the area. But you know that in case of the, ये तो change in the slope था। अब हमें क्या निकालना है, हमें मैक्सिमम स्लोप निकालना। तो मैक्सिमम स्लोप कहां पे होगी, इस पॉइंट के ऊपर, थीटा ए के ऊपर। तो आपको पता है कि इन द फिक्स्ड बीम, इन द कैंटिलीवर बीम, यू कैन से इन कैंटिलीवर बीम, cantilever beam at the fixed end, at the fixed end, fixed end के ऊपर क्या होगा, थीटा बी आपका इसके बराबर होगा 0। थीटा बी क्या होगा, थीटा बी 0 at the fixed end, you understand? So therefore theta A, this is equal to the area of the bending moment diagram. अब देखिए एरिया क्या होगा बाय बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, दिस इज जस्ट सॉर्ट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा 1/2, व्हाट इज द बेस L इंटू WL अपॉन EI, राइट। So therefore theta A is equal to WL square upon 2EI. अब देखिए, here I have considered the moment area method, और जहां पे you have seen that कि this problem जो कि हमें डबल इंटीग्रेशन में जब हमने निकाली थी बाय यूजिंग द डबल इंटीग्रेशन मेथड, तो कैंटिलीवर बीम का जो मैंने स्लोप निकालना था उसके लिए बहुत लेंथी प्रोसेस हमें मुझे करना पड़ा था। और जहां पे देखिए सिर्फ 2 स्टेप में, 2 भी नहीं है, आप कह सकते हैं 1 स्टेप में आई हैव डन इट, 1 स्टेप में ये आपका कंप्लीट हो गया। थीटा ए इज इक्वल टू WL स्क्वायर अपॉन 2EI, दिस इज द स्लोप in case of maximum slope in case of cantilever beam, you understand this? तो जहां से आपने देखा कि ये मेथड कितना शॉर्टकट मेथड है, कितना इजी मेथड है। जो लेंथी प्रोसीजर था जो हमने मैकॉलेस मेथड में या डबल इंटीग्रेशन मेथड तो उससे भी ज्यादा लंबा था, उस केस में जब हमने ये कैंटिलीवर बीम का हमने स्लोप का फार्मूला जो ड्राइव किया था या इस किस्म का जो क्वेश्चन उसमें किया था, वहां पे देखा कि आप वहां पे हमें कितना उसको लंबा प्रोसेस था। पहले बेंडिंग इक्वेशन लिया, उसको फिर हमने इंटीग्रेट वंस किया, बाउंड्री कंडीशंस का यूज किया, और उसके बाद हमें मैक्सिमम स्लोप वी हैव कैलकुलेटेड इन दैट केस। बट जहां पे आपने देखा कि ओनली आई हैव जस्ट टेकन 2 स्टेप हियर एंड थीटा इज इक्वल टू WL स्क्वायर अपॉन 2EI, यू अंडरस्टैंड दिस। अब देखिए डिफ्लेक्शन,
नाउ आई हैव टू फाइंड द डिफ्लेक्शन। जहां तक ठीक है इसको मिटा देते हैं। अब देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए जहां पर भी आपको 2 स्टेप ज्यादा से ज्यादा करने पड़ेंगे और सिर्फ आपको कंसेप्ट इसका समझना है। सो फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, जो आपकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी इस केस में क्या करेंगे, जब अपने मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे आप, राइट, आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम के ऊपर पहला क्या पॉइंट याद रखना है, जो भी टेंजेंट होगा दैट शुड बी हॉरिजॉन्टल। और जो इसमें जो टेंजेंट होगा हॉरिजॉन्टल किस तरीके से बनेगा, ये बीम के अलोंग, तो बीम की लेंथ है इसके अलोंग ही ये आपका ये इस तरीके से ये आपका बीम, ये आपका टेंजेंट आ गया इसके ऊपर, राइट। तो जो बीम थी, बीम के साथ साथ ये टेंजेंट आ गया। यू अंडरस्टैंड दिस। तो अब जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी, दिस इज टी ए बी, दिस इज द पॉइंट ए ऑन द टेंजेंट, राइट। दिस इज द पॉइंट ए, ये कहां पे है, टेंजेंट के ऊपर पॉइंट है। और जहां से जहां तक जो है, जहां से बी पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रा किया और ये जो इलास्टिक कर्व के ऊपर जहां पे जिस पॉइंट के ऊपर मिला, सो दिस इज, यू कैन से दिस इज योर maximum deflection. You understand this? So for maximum deflection you can say TAB is equal to YA। क्यों, डिफ्लेक्शन तो इसी पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होगा, इस पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज दिस इज ए फिक्स एंड है। तो जहां पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन तो आपका 0 होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा यहाँ पे। तो TAB is equal to this। और ये किसके बराबर होता है, एरिया नहीं, मूवमेंट ऑफ द एरिया ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट इनटू एक्स बार। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम करना, राइट। एक्स बार, आप पॉइंट क्या है कि हमें एक्स बार क्या मतलब है, एक्स बार मैंने आपको बताया था कि एक्स बार क्या है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द CG of the area to the point where the movement is taken, जहां पे हम मूवमेंट ले रहे हैं, where the movement is taken, right। तो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द CG। तो ये आपका पॉइंट है ए, राइट। तो ये CG इसका कहां पे आएगा, CG आपका इस पॉइंट के ऊपर आएगा, इस पॉइंट के ऊपर, राइट। CG कहां पे आएगा, इस पॉइंट के ऊपर आपका CG आएगा, C, और इसका डिस्टेंस क्या होगा, दिस इज 2L/3। और ये डिस्टेंस क्या होगा, इस साइड से अगर हम देखेंगे ये होता है 2L/3। और अगर इधर से जो बड़ी वाली साइड होगी, वर्टिकल साइड होगी, अगर हमने इधर से ट्राइंगल का वो निकालना है तो वो होता है L/3। यू अंडरस्टैंड दिस। तो डिस्टेंस ऑफ द CG वो किस पॉइंट के ऊपर लिया, A पॉइंट से लिया, बिकॉज वी आर ड्राइंग द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B। तो मूवमेंट हमें कहां पे निकालना है, A के ऊपर निकालना है। तो आप ये जो है वो कर लीजिए आप। तो पहले आपका एरिया क्या आया, इसका मूवमेंट ऑफ द एरिया निकालना है, दिस इज इक्वल टू 1/2, राइट, L into WL, right।
sorry, WL into WL into what is the distance of the CG? That is 2Ly3, right? That is 2Ly3 divided by EI, right? यही है ना हमारा फार्मूला। डिफ्लेक्शन का क्या फार्मूला था? डिफ्लेक्शन का फार्मूला था मूवमेंट ऑफ द एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइडेड बाय EI, राइट? सो ये 2 और 2 आपका कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया ये? Therefore WL3 upon 3EI. So this is the maximum deflection in case of cantilever beam. This is the maximum deflection in case of the cantilever beam. So you understand here, only I have taken the 2 steps. क्या किया? पहले मैंने इलास्टिक कर्व ड्रा किया, वो तो सभी के लिए कंपल्सरी है. Then I have drawn the then I have drawn the bending moment diagram. और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का मैंने क्या किया, जिस पॉइंट के बीच में आपने निकालना है, तो एक्चुअली ये ए और बी के बीच में था, सो आई हैव टू टेक द एरिया ऑफ द बेंडिंग होल ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हियर. तो उसका एरिया मैंने फाइंड आउट कर लिया, और साथ में जो डिस्टेंस था इसका सेंट्राइड से अप टू द पॉइंट ए, वो हमने लेना है फॉर कैलकुलेटिंग द मूवमेंट, राइट? तो इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो जो जे वाला डिस्टेंस होगा एट द पॉइंट एज यू कैन से, जहां पे 2Ly3 होगा, और ये जो वर्टिकल साइड वाला होगा दैट इज Ly3 वी टेक दैट. तो ये सीधी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया एंड यू हैव गॉटन दिस वैल्यू WL3 सो दिस इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ द कैंटिलीवर बीम. तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट दैट दिस इज वेरी इजी प्रॉब्लम. तो एक हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. So
एप्लीकेशन इसकी करते हैं हम, एप्लीकेशन एक अच्छा सा न्यूमेरिकल, so that you can understand it well, right? So my application is, question is, so this is a cantilever beam, this is your cantilever beam, right? So here your load 5 kilonewton, right? So at this point load is 10 kilonewton, जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस 1 मीटर और जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस 3 मीटर, राइट? सो दिस इज द प्रॉब्लम, अज्यूमिंग द EI is equal to constant, assuming this point is A, this point is B. So this is the cantilever beam and 2-point loads are acting on the beam. That 1-point load is acting at this point and the second one is acting 10 kilonewton at this point, means that the distance 1 meter from point A and from here to here the length of the beam is given, that is 3 meter. So this is the cantilever beam and we have to find the, assuming the flexural rigidity, that is EI, this is also given, that is constant. तो ये एक हम एप्लीकेशन करते हैं. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट क्या फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड द मैक्सिमम स्लोप. क्या फाइंड आउट करना है हमें, मैक्सिमम स्लोप फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप, दैट वी हैव टू ड्रॉ द इलास्टिक कर्व. तो आप क्या करें, इसकी इलास्टिक कर्व जो है ड्रा कर लीजिए. दिस इज योर इलास्टिक कर्व, राइट? फर्स्ट यू ड्रा द इलास्टिक कर्व. आप ये आपकी सपोज इलास्टिक कर्व है एंड सेकंड पॉइंट इज यू विल ड्रा द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो इसकी आप बेंडिंग मोमेंट एक डायग्राम ड्रा कर लीजिए. दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए क्या होगा, 0 होगा, राइट? सो 0 है. सो एट पॉइंट, दिस पॉइंट इज C or B. This point. सो जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर कितना बेंडिंग मोमेंट होगा, 5 × 1. तो ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है लेफ्ट साइड के ऊपर. तो मैं इस पॉइंट के ऊपर 5 जहां पे ले लेता हूं, दिस इज 5 पॉइंट ले लिया, राइट? और आप बेंडिंग मोमेंट अगर मैं पॉइंट C के ऊपर फाइंड आउट करूं तो कितना आएगा, 5 × 4 20 और ये 10 × 3 30, मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ये, बिकॉज वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, द फोर्सेस दे आर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. सो इट मीन्स 20 + 30 50 हो जाएगा. तो ये मैं कहता हूं कि ये पॉइंट आपका इस पॉइंट के ऊपर, दिस पॉइंट इज योर 50, राइट? ये पॉइंट क्या है, 50 के ऊपर है. ये आपका आ गया 5 kilonewton and this is your 50 kilonewton. Now you draw the डायग्राम. तो क्या होगा, ये जहां से ये स्लोप आएगी इस पॉइंट के ऊपर, राइट? एंड देन ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं लेंगे आप, देखिए ये, क्योंकि इनकी स्लोप वैरी करेगी, ये स्लोप डिफरेंट होगी, ये स्लोप डिफरेंट होगी. तो अगर देखा जाए ड्यू टू द कंस्ट्रेंट ऑफ द, मेरे पास जगह के कारण, तो आपको इस तरीके से लगेगा, अदरवाइज द स्लोप इज लाइक दिस.
तो इस पॉइंट के ऊपर आपका 50 किलो न्यूटन होगा, राइट। तो ये आपने याद रखना है कि ये स्लोप जो है एक लाइन में नहीं करेंगे। वो किस लिए नहीं होगा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं शेयर फोर्स कैलकुलेट करूं तो पॉइंट ए के ऊपर शेयर फोर्स कितना होगा, 5 है, राइट। सो बी के ऊपर शेयर फोर्स कितना होगा आपका 15 है। तो स्लोप अगर 5 से देखेंगे तो 15 के ऊपर 15 कितना 15 किलो न्यूटन है। तो जो स्लोप होगी आपकी ये 5 से जहां तक ये 3 टाइम्स मोर होगी। क्या होगा, 3 टाइम्स जो है ज्यादा होगी, लेकिन ये मैं शो नहीं कर पाया, बट अदरवाइज इट इज 3 टाइम्स मोर, राइट। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है इस प्रॉब्लम का आपके पास आ गया। यू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर शेयर फोर्स मैं लिख रहा था, ये शेयर फोर्स जहां पे क्या है, शेयर फोर्स ए के ऊपर कितना है, एट ए कितना है शेयर फोर्स 5 किलो न्यूटन है, और शेयर फोर्स एट बी कितना होगा 15 किलो न्यूटन है। तो आपने देखा कि ये कितना वेरी किया, 3 टाइम्स वेरी किया, इसलिए जो स्लोप होगा ये भी आपका 3 टाइम वेरी करेगा। यू अंडरस्टैंड दिस। तो खैर दिस आई डोंट रिक्वायर, दिस ओनली आई वांट टू शो यू। तो ये हमने दोनों चीजें ड्रा कर ली, इलास्टिक कर्व भी आपकी ड्रा होगी और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी मैंने ड्रा कर ली। अब फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप, राइट। तो स्लोप आपकी जो होगी उसके लिए कहां पे मैक्सिमम होगी, थीटा ए। तो हम अगर स्लोप का लिखते हैं थीटा ए माइनस थीटा सी, दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ this is equal to the area theta a minus theta c, this is equal to the area of the bending moment diagram between a and c, between a and c, between A and C divided by E I. You understand this? So आपको पता है in case of fixed beam, sorry, in case of cantilever beam, तो उसका एंड फिक्स है, थीटा सी इज अ फिक्स एंड, तो थीटा सी क्या होगा, therefore the theta c is equal to 0. थीटा सी की वैल्यू क्या होगी, स्लोप एट द पॉइंट सी, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास क्या होगा, therefore थीटा ए दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब देखिए होल एरिया निकालना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि इस एरिया को हम इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। एक ये आ गया और एक जहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लो, ये एरिया नंबर 1, ये एरिया नंबर 2 एंड ये एरिया नंबर 3। अब देखिए जहां से जहां तक जो डिस्टेंस है ये है 1 मीटर। यू अंडरस्टैंड दिस। और जो जहां से जहां तक जो डिस्टेंस है एज पर द डायग्राम ये आपका 3 मीटर। यू अंडरस्टैंड दिस। ये डिस्टेंस तो आपका 5 किलो न्यूटन है, इसलिए ये भी जो आपका डिस्टेंस होगा ये भी आपका कितना होगा 5 किलो न्यूटन होगा, राइट। तो अगर ये 5 किलो न्यूटन होगा तो ये जो आपका डिस्टेंस बचा जहां से जहां तक जो ये डिस्टेंस है दिस इज 45 किलो न्यूटन। 45 दैट बिकॉज इट इज 50 किलो न्यूटन। यू अंडरस्टैंड दिस। और ये भी आपका 3 मीटर आ गया। यू अंडरस्टैंड दिस। तो व्हाट वी हैव डन, मैंने जो ये एरिया था आई हैव जस्ट डिवाइडेड दिस एरिया इनटू 3 पार्ट्स। तो हर पार्ट का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जमा कर लेंगे, सम कर लेंगे। सो देयरफॉर थीटा ए, अब देखिए दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे 1/2 इनटू व्हाट इज योर बेस
1 into 5, 5 is height. Now second area, this is the rectangle, ये आएगा आपका 3 into 5. You understand this? और तो अगला एरिया है दैट इज आल्सो राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या आएगा 1/2 into 3 into 45, राइट. सो डिवाइडेड बाई EI, डिवाइडेड बाई EI. तो कैलकुलेट कर लो कितना आ गया. So this is theta A, 85. So therefore theta A, EI की value we have assumed here in this problem, that is given EI, this is equal to 10⁴ mm4, right. EI की value आप क्या करें, इसमें 10⁴ सब्स्टिट्यूट करें तो स्लोप आपकी क्या आएगी 85 डिवाइडेड बाई 10⁴, R you can say 8.5 into 10⁻³ रेडियन, राइट, इनटू रेडियन. स्लोप किस में आएगी आपकी, रेडियन में आएगी. सो रेडियन. और अगर आपको इसको स्लोप को डिग्री में करना है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इट बाई पाई डिवाइडेड बाई 180, तो उसमें आपको इसमें मिलेगा. तो जहां तक आपको क्लियर हो गया, हमने क्या किया, यहां से दोबारा देखिए, एरिया ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बिटवीन ए एंड सी डिवाइडेड बाई EI. तो इसको मैंने, ये जो आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम था, आई हैव नॉट टेकन इट होल बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द एरिया इन दैट केस. So what I have done, I just divided this diagram into 3 parts. That is part number 1, part number 2, and part number 3. And in part number 1, there is a right angle triangle. Part number 2, there is the rectangle triangle, and part number 3, there is also a right angle triangle. And you know the area of the rectangle triangle, right angle triangle. You know the base. So I have just put the area here, and this is divided by EI, and this is your maximum slope. You got it at point A. तो चेक जहां पे क्लियर है, सो आई विल जस्ट स्टॉप इट नाउ. इसको बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को रहने देंगे, इलास्टिक कर्व भी रहने देंगे. अब देखिए, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कि इसमें जो आप टेंजेंट होगा हमारा, टेंजेंट होगा, तो टेंजेंट हमारा इस लाइन के ऊपर ही होगा, जो along the beam, because we are taking the horizontal tangent here, right. इस तरीके से टेंजेंट होगा, राइट. और ये जो आपका डिस्टेंस होगा, राइट, दिस इज द TAC, दिस इज योर डिस्टेंस. जिस पॉइंट के ऊपर हम जो निकालते हैं उसको पॉइंट पहले लिखेंगे. TAC का मतलब डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट C.
तो TAC दिस इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इस केस में, जहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा बाई A, दिस इज इक्वल टू TAC। यू अंडरस्टैंड दिस? अब देखिए, अब इसमें आ जाइए, ये चीजें तो सेम रहेंगी, दिस पार्ट इज सेम बिकॉज जहां पर भी हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कर लेनी है, और जहां पे एक्स्ट्रा क्या होगा, ओनली द डिस्टेंस फ्रॉम द CG, डिस्टेंस फ्रॉम द CG टू द पॉइंट वेयर वी आर टेकिंग द मोमेंट, दैट इज ऑल्सो राइट। सो डिफ्लेक्शन जो है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, that is TAC, this is equal to YA, this is equal to first moment of area AC, right? AC of bending moment diagram divided by EI, यही है ना, राइट? आप मुझे बताइए, therefore by A फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया क्या होगा, मींस एरिया ऑफ द कंप्लीट बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, area of the bending moment diagram into the distance of the CG, the distance from the CG up to the point A, जिस पॉइंट के ऊपर आप ये निकाल रहे हैं मोमेंट, है ना, तो दैट यू कैन से, आप इसको XA बार कर सकते हैं बिकॉज यू आर टेकिंग द डिस्टेंस ऑफ द CG फ्रॉम द पॉइंट A, ठीक है, XA बार डिवाइडेड बाई EI। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? अब वही बात है, एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या करेंगे हम, सेपरेट एरिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का लेंगे और सेपरेट ही इसको CG के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बाद में इसको सम कर लेंगे और हमारी प्रॉब्लम जो है वो क्या होगी, वो निकल जाएगी आपकी प्रॉब्लम। अब देखिए, पहले एरिया मैं ये वाला लेता हूं, राइट? अब देखिए इसमें एरिया क्या होगा, इसको थोड़ा समझिए पॉइंट को। फर्स्ट आई विल टेक दिस पार्ट 1, राइट? तो पार्ट 1 में होगा 1/2 इंटू व्हाट इज द बेस 1 मीटर, व्हाट इज द लेंथ 5। नाउ आई हैव टू टेक द डिस्टेंस XA। XA क्या डिस्टेंस होगा, जो इसका CG होगा। देखो मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया, इसको बाहर फर्स्ट इधर कर लीजिए, ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल लिया यहां पे, तो मुझे इसका CG निकालना है। CG जो अगर होगा, वो जहां पे जो CG है, अगर मैं इसका इधर से और जहां से इसका डिस्टेंस इस साइड से करूं तो ये होता है 2L/3। समझे बात? आप ये आपका अगर मैं CG लेता हूं तो ये होगा 2L/3, और अगर इस पॉइंट से लूंगा तो ये आपका होगा L/3, ठीक है, 2L/3। तो L क्या है, जहां पे 1 है, L क्या है 1 है, तो डिस्टेंस x बार क्या आएगा, जो आपका XA बार होगा, XA बार वो आपका क्या आएगा 2L/3, यही डिस्टेंस होगा ना, 2L/3 जो डिस्टेंस होगा 2L/3। तो 2L/3 क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू L क्या है 1 है इंटू 3, ये आपका आ गया 2/3। यू अंडरस्टैंड दिस? XA बार क्या आएगा 2/3 XA बार। सो दिस इज इक्वल टू XA बार। समझ आ गया? कैलकुलेट करना क्या किया हमने, ये मैंने एज्यूम किया ये आपका सेंट्राइड है, और जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस होगा 2L/3 है, जबकि जहां पे L क्या है 1 है, तो 2 इंटू 1/3 क्या हो गया, जहां पे 2/3। यू अंडरस्टैंड दिस?
प्लस, अब दूसरा पार्ट इसका कर लो। अब जहां पे जो सी डी होगा वो कहां पे होगा, इस पॉइंट के ऊपर होगा। सपोज ये पॉइंट के ऊपर है, पहले मैं इसका एरिया निकाल लेता हूं। तो एरिया क्या आएगा, इसका एरिया क्या आएगा, 3 मीटर इंटू 5 मीटर, बिकॉज दिस इज द रेक्टेंगल। अब देखिए, जहां से लेके जहां तक मुझे डिस्टेंस लेना है, जहां से लेके जहां तक, हमें कहां से डिस्टेंस लेना है, ये आपका सीजी है इसका। तो सीजी रेक्टेंगल में कहां पे होगा, सेंटर में होगा। ये अगर 3 मीटर है, देखिए, तो जहां पे अगर मैं एक्स बार इसका निकालूं, इसको मिटा देते हैं। अगर मैं मुझे इसका एक्स बार निकालना है, एक्स बार मुझे इसका निकालना है, एक्स ए कर लो, तो क्या होगा, जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस कितना होगा, बिकॉज दिस इज टोटल 3 मीटर। और मैंने आपको बताया जो रेक्टेंगल का जो सीजी होगा वो सेंटर में होगा, तो ये होगा 1.5 आधा, प्लस जहां से लेके जहां तक कितना है 1 मीटर। सो दिस इज योर 2.5 मीटर। यू अंडरस्टैंड दिस, रेक्टेंगल से सीजी कितना आया, 2.5 मीटर। तो ये मल्टीप्लाई करो 2.5 से, प्लस अब आ जाइए इसमें रेक्टेंगल में, ये बड़ी वाली रेक्टेंगल पार्ट 3 जो है, ये मैंने आपको पार्ट 3 दिया। देखिए आपका क्या है, पार्ट 3 है। तो इसका भी एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फर्स्ट। तो एरिया इसका क्या आएगा, इसका एरिया 1/2, राइट। सो व्हाट इज योर बेस, 3 मीटर, 3 into, एंड व्हाट इज दिस हाइट, 45। ये मैंने पहले ही लिखा है 5 मीटर, ये चला गया, टोटल 50 था, तो ये 45 हो गया। अब देखिए, अब इसका एरिया निकालना है हमें। मैं कहता हूं कि इसका ये पॉइंट है, हमें ये डिस्टेंस लेना है जहां से लेके जहां तक टोटल, राइट। ये मैं कहता हूं इसका सीजी है। तो अगर इस साइड से सीजी लूंगा मैं, इस साइड से, तो ये कितना होगा, देखिए 2l/3 यही होगा इस साइड से। तो l कितना है इसमें, l कितना है, 3 मीटर है। तो ये 2l/3, तो आप इसे कर सकते हैं 2 × 3/3, ये कैंसिल, तो क्या हो गया ये 2 मीटर। सो जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस कितना हो गया आपका, कितना हो गया 2 मीटर। और जहां से लेके जहां तक कितना है आपका 1 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना हो गया, 3 मीटर। मींस 2 + 1, ये एक्स ए बार इस पॉइंट से होगा, दिस इज 3 मीटर। यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये आपका क्या होगा, 3 मीटर आ जाएगा यहां से। तो ये क्या हो गया, 3 मीटर इंटू 3 डिवाइडेड बाई EI। EI क्या है, 10⁻⁴। करो इसको, सॉल्व करो, हाउ मच यू विल गेट।
दिस इज ये आपका आ गया 247.66 डिवाइडेड बाई 10⁻⁴, राइट। कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा आप भी। तो ये कितना बन गया आपका? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफ्लेक्शन कितना आ गया? बाई ए, दिस इज इक्वल टू 24.7 इंटू 10⁻³ mm। ये आपका डिफ्लेक्शन। यू अंडरस्टैंड दिस? सो यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। जहां पे देखा आपने, जहां पे सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो डिस्टेंस लेना है सीजे से, उसकी कैलकुलेशन आप ठीक तरीके से करें। यू अंडरस्टैंड दिस? अगर राइट एंगल का केस आता है तो राइट एंगल के केस में आपको पता है जहां पे जो परपेंडिकुलर एच होगा राइट एंगल का, वर्टिकल आप कह सकते हैं वर्टिकल हाइट होगी, अगर उस साइड से अगर हम ले तो वो टोटल लेंथ का 1/3 होगा डिस्टेंस, L/3 जहां से होगा। एंड इफ यू विल टेक फ्रॉम दिस साइड, दिस इज 2L/3, राइट। ये सेंट्राइड अगर आपने ट्राइंगल का निकालना है तो दिस इज द वे टू फाइंड। रेस्ट यू नो दैट सेंट्राइड हाउ टू फाइंड इन केस ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज एट द सेंटर। तो रेक्टेंगल का मैंने आपको बता दिया, ट्राइंगल का मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आप कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा किया, उसका एरिया ड्रा किया, और एरिया के बाद जो डिस्टेंस होगा सीजी का, डिस्टेंस ऑफ सीजी फ्रॉम द पॉइंट ए वेयर वी आर टेकिंग द मोमेंट, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। एंड देन यू हैव टू कैलकुलेशन करना, सिंप्लीफिकेशन करना, एंड यू विल गेट द आंसर। सो यू हैव सीन दैट दिस इज वेरी इजी टाइप ऑफ मेथड। और आई थिंक जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया है और जिस तरीके से आपको कोशिश किया है कि आपको बड़े सिंपल तरीके से हर चीज को प्रॉपरली क्लियर करें, तो आई थिंक ये आपको अभी तक जहां तक भी मैंने आपको पढ़ाया है, द कंसेप्ट ऑफ वेरी मच क्लियर टू यू। तो जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कल हम दोबारा इसके आगे वाला सिंपली सपोर्टेड बीम का लेंगे। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हमें किस तरीके से निकालना, मेथड इज सेम, only the calculation part is somewhat different, otherwise not much difference in that method। आपने वहां पर भी अपना एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है और उसको सीजी के साथ मल्टीप्लाई करना है, बट ओनली यू कैन से दैट द बेंडिंग मोमेंट इज डिफरेंट इन दैट केस। जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा that is different in that case, only that you come to know, otherwise rest everything is same। So thank you very much. Today this is enough, and tomorrow again I will take the lecture, further lecture of this moment area method, right? Thank you very much.